Okay, we were discussing this question, question number 26, isn't it? Okay. So we found r upon r to be cos pi by n, right? And we started substituting values of n, isn't it? So we put n is equal to 3, we obtained r upon r as 1 by 2, है ना? अच्छा, तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि what is ratio of small r to capital R in equilateral triangle? What is relation between small r capital R for in a square? ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं. तो keep this in mind, equilateral triangle, square वगैरह सारे regular polygons हैं. इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है वहाँ, ठीक है? तो जस्ट कीप दिस इन माइंड, राइट? If you put n is equal to 4, we get cos pi by 4, cos 45 which is 1 by root 2, ठीक है? अच्छा, थर्ड, if you put n is equal to, अच्छा अपना ऑप्शंस नोटिस किया, 1 by root 2 है, 1 by 2 है, एक और root 3 by 2 है. We get root 3 by 2 if you put n is equal to 6. cos pi by 6 होता है root 3 by 2. तो क्लियरली cos 2 by 3 कभी नहीं हो सकता है cos 2 by 3 फॉर सर्टेन एंगल, लेकिन शायद से वो n इंटीजर पे नहीं होगा शायद से, है ना? सो वी कैन कम टू दिस कंक्लूजन कि ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट. तो 26 का आंसर, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू एडवांस सेक्शन, राइट? एडवांस का ये पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 40, इज इट? एप्लीकेशंस ऑफ एरिया, नेबर्स एनालॉजी एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल. सो दिस इज एडवांस सेक्शन, पेज नंबर 40. So we'll be discussing these questions. Question number 99, question number 100. जैसे 101 हो चुका है ऑलरेडी अपना, where we need to find the area of triangle. ठीक है, 101. And then we'll be looking at question number 109 and 110. Right. So let's discuss these questions on this page. So let's start with question number 99. We have this triangle PQR. Instead of triangle PQR, you could also consider triangle ABC. It wouldn't make much of a difference. So in triangle PQR, we have been given A is 2, B is 7 by 2, and C is 5 by 2. Okay? Where A, B, C are opposite to PQR. So we'll do one thing. Instead of PQR, let's take ABC for convenience sake. He's asking us to find the value of 2 sin P minus sin 2P divided by 2 sin P plus sin 2P. ये शायद से हम ऑलरेडी कर चुके हैं. And remember, since we have considered ABs in terms of instead of PQR, let's take sin A, sin 2A, 2 sin A, sin 2A, right? और इसको अपने को ना डेल्टा में कन्वर्ट करना है, ठीक है? एनीवे, वी यूजुअली अप्लाई डबल एंगल फॉर्मूला इन दिस केस, isn't it? 2 sin A minus 2 sin A cos A upon 2 sin A plus 2 sin A cos A. तो क्लियरली 2 sin A कॉमन निकलेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल भी हो जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा 1 minus cos A upon 1 plus cos A. Now you see, since we have delta here, probably we need to apply half angle formula. So 1 minus cos theta होता है 2 sin square theta by 2 और ये 2 cos square theta by 2, right? So 2 gets cancelled. Ultimately we get tan square theta by 2, tan square theta by 2.
इसलिए आपने नोटिस किया कि दो ऑप्शंस में ना स्क्वायर है, एंड मोर ओवर डेल्टा डिनोमिनेटर में। नाउ रिमेंबर वी डिड डिस्कस दिस पॉइंट आई गेस कि tan a/2 का बेसिक फॉर्मूला होता है sin a/2 अपॉन cos a/2। साइन में a नहीं होता है, यानी s माइनस बी s माइनस सी अपॉन bc साइन का, और cos का s इंटू s माइनस। हमने इसको डेल्टा में कन्वर्ट किया है। व्हाट एग्जैक्टली डू वी गेट इन डेल्टा? हमने शायद से s इंटू s माइनस a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया s इंटू s माइनस a से, तो न्यूमरेटर में रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस a बिकम्स डेल्टा, और डिनोमिनेटर में s इंटू s माइनस a का स्क्वायर रूट कटेगा, तो डेल्टा अपॉन s इंटू s माइनस a। ये एक फॉर्मूला है, मोस्टली यही अप्लाई करते हैं हम, लेकिन समटाइम्स वेरी रेयर ओकेजन्स कि हम s माइनस b s माइनस c से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो न्यूमरेटर में आएगा s माइनस b s माइनस c और डिनोमिनेटर में आएगा डेल्टा, है ना। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज कीप दिस इन माइंड, क्योंकि ये हम ये वाला क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि डेल्टा डिनोमिनेटर में है ऑप्शंस में। We just need to find s minus b s minus c, ठीक है। अच्छा, first we need to find s for that, so s is half of 2 plus 7 by 2 plus 5 by 2, 12 by 2 6 plus 2 8 upon 2 is 4, so s minus b is 4 minus 7 by 2 which is 1 by 2, s minus c 4 minus 5 by 2 which is 3 by 2, so that's it। सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी, है ना। tan स्क्वायर a by 2 की जगह हम लिखेंगे s minus b s minus a upon डेल्टा का होल स्क्वायर, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन गिव्स अस 3 by 4 डेल्टा। डेल्टा वैसे वैसे इनका मल्टीप्लिकेशन है 3 by 4, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन था, नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 100 पे। Looks like we have multiple solutions to question number 100 here. So in radius of a circle which is inscribed in isosceles triangle. So in radius is given to us, और वो isosceles triangle है, and one of the angles is 2 pi by 3, right? You could take angle A as 2 pi by 3, माने 120 degree, ठीक है। Since it is isosceles, the other two angles have to be equal. Angle B should be equal to angle C. So obviously angle B should be equal to angle C, and both should be equal to 30 degree, right? And R is given to us. R is √3. He is asking us to find delta. ठीक है। So what are all the formula for delta? Since we have R here, delta is obviously R into S. The first formula that comes to our mind is delta is R into S, right? Sure. So we need to find S here, isn't it? So is there a formula which links R, S and angles? Yes, आपके पास है। R is equal to S minus A tan A by 2, है ना। Let's use this formula. Let's see. अच्छा, क्या S minus B tan B by 2 भी होता है, और S minus C tan C by 2 भी होता है, ठीक है। But then you see B और C इक्वल है, क्योंकि एंगल भी एंगल C इक्वल आइसोस्केलेस की वजह से, तो हम सिर्फ ये दो ही निकालेंगे, ठीक है। और S minus C इक्वल टू हम इसके हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, S minus A tan 60 डिग्री, tan 60 is √3, और ये S minus B tan 15 डिग्री, रिमेंबर tan 15 होता है 2 minus √3, और R की वैल्यू दे रखा है, R की वैल्यू है √3, therefore if you use this condition R is √3, isn't it? तो √3 कटेगा, तो S minus A का वैल्यू आएगा 1, कंडीशन नंबर 1। सिमिलरली
यहाँ देखो s माइनस बी जो है इट इज √3 अपॉन 2 माइनस √3। रैशनलाइज करें तो नीचे में देखो 1 हो जाएगा और ऊपर में 2√3 प्लस 3 ये s माइनस बी है। सो सिमिलरली s माइनस सी विल आल्सो बी इक्वल टू 2√3 प्लस 3, राइट। नाउ रिसेंटली हम कुछ क्वेश्चंस किए जहां वेयर वी ऐड s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, दिस एक्चुअली गिव्स अस s, इज इट? ये देखो 3s माइनस ऑफ a प्लस b प्लस c, 3s माइनस 2s s, ठीक है। इन तीनों को ऐड किया 1 2 3, व्हाट डू वी गेट? 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 प्लस 2 3 प्लस 2 3 गिव्स अस 4, अल्टीमेटली आ गया s, ठीक है। यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे अल्टीमेटली, तो डेल्टा इज इक्वल टू r इनटू s, तो 7√3 प्लस 12 इज योर आंसर, ठीक है। ये एक मेथड है, this is one of the methods. Now we have another method where you know, since we have all the angles, remember to find sides या ratio of sides, remember we apply sine rule, isn't it? तो अच्छा, साइन रूल के लिए ना a 2r sin a होता है, 2r sin b होता है, 2r sin c होता है, we basically need capital R, है ना। if you want to go for alternate method, I think which is also probably easier, maybe easier compared to this, so capital R अपने को फाइंड करना है। तो is relation between small r and capital R? हाँ, there is a relation, R is equal to 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, तो उससे आपको R मिल जाएगा। फिर साइन रूल से a b c मिलेंगे, फिर a b c को ऐड किया तो s मिल जाएगा, है ना। so वो वाला मेथड आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ऑन योर ओन। सो 99 का आंसर आया सी और 100 का आंसर आया अगेन सी। जब 101 पहले हुआ था ना, 101 हुआ था, 101 हुआ था, ओके। एनीवे अपने सिलेबस में डेल्टा है, सो रिवर डेल्टा के क्या क्या फॉर्मूले हैं अपने पास? एक तो है हाफ बेस इनटू हाइट, बहुत बचपन से करते आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हाफ ए बी साइन सी, 2 साइड्स इंक्लूडेड है। और है हेरॉन्स फॉर्मूला, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और डेल्टा इज इक्वल टू आर एस जो अभी अभी किया हमने। और फॉर्मूला है ए बी सी अपॉन 4r, स्मॉल आर के टर्म्स में, कैपिटल आर के टर्म्स में। और भी है 2 साइड्स इंक्लूडेड एंगल, 2 एंगल्स इंक्लूडेड साइड का भी एक फॉर्मूला था, a square by 2 sin b sin c upon sin a. These are all the formulae for delta. So if you look at question number 101, we have 2 angles, angle A probably 30 degree, angle B 45, included side का मतलब c होता है √3 + 1, तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। So delta is, remember, c square by 2, c square by 2 sin A sin B अपॉन sin C। अच्छा, इनका सम कितना होगा? इनका सम हो रहा है 75, तो एंगल C शुड बी 105, है ना। अच्छा, और sin 105 होता है √3 + 1/2 है ना, क्योंकि sin 105 is sin 75 अभी, ठीक है। सो sin A in this case c square by 2 sin A sin B upon sin C, sin C is sin 105 is √3 + 1/2 2√2 2√2 कटेगा, एक √3 + 1 भी कटेगा,
तो आंसर इज √3 + 1/2। ठीक है, अब आते हैं 109 पे। आई थिंक 110 अपना हो चुका है, तो 110 is something which we have discussed already. So just refer to altitudes lecture. 110 is important, at the same time we will discuss this. है ना? बस आपको P1, P2, P3 को मल्टीप्लाई करना है ना, as simple as that. हम आते हैं 109 पे, राइट। रिमेंबर अभी डिस्कस किया हमने, P1 का फॉर्मूला था 2 डेल्टा अपॉन A, P2 is 2 डेल्टा अपॉन B and P3 is 2 delta upon C. He is asking us to find 1 upon P1 plus 1 upon P2 minus 1 upon P3. 1 upon माने A upon 2 delta plus B upon 2 delta minus C upon 2 delta. अच्छा 2 delta तो कॉमन निकलेगा, तो 2 delta कॉमन निकलेगा और यहाँ बचेगा A plus B minus C. Okay. You know, we could call this as condition. हम शायद से RHS को simplify करेंगे तो better होगा, maybe. Let's see. If you look at RHS, अपने पास है 2AB upon A plus B plus C delta cos square C by 2. ठीक है? अच्छा ये 2AB A plus B plus C होता है 2S डेल्टा cos square C by 2। cos का फॉर्मूला क्या था, S minus A S minus B upon AB। अच्छा AB कटेगा, 2 भी कटेगा, ये है ना फॉर्मूला cos square C by 2 का। हाँ ये लाना है A plus B minus। अच्छा A plus B minus C क्या होता है, इसको हम लिख, अगर ये होता है 2S minus 2C, सही है क्या, है ना। अगर एडिंग से सब्ट्रैक्टिंग से किया तो ये आएगा, माने S minus C upon डेल्टा लाना है, we just need to bring S minus C upon delta. Wait, what we did here is correct, right? 1 by P1 it was 1 by 2 delta A plus B minus C, और ये 2AB upon A plus B plus C delta cos square C by 2। अच्छा cos square C by 2, ये क्या होता है, S into S minus C होता है ना, मैंने साइन का फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। तो S S कटेगा तो S minus C by डेल्टा आ गया। तो ये LHS और ये RHS है ना। Yes, this was a simple question, right? Not complicated at all. We had to simplify LHS and RHS both, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। पेज नंबर 41। तो हम करेंगे 112, 113, 114 तो अभी हुआ है, 115 हिस्ट्री, 119 हम पहले कर चुके हैं, 121,
2 we'll see 126 127 126 आप लोग कर सकते हो। R1 R2 R3 HP में है तो साइज AP में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। ओके, हम आते डायरेक्टली 127 पे, राइट। सो कंसीडर ट्रायंगल ABC that A, B and C denote lengths of sides opposite to vertices ABC वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अपने पास है स्मॉल a है 6, स्मॉल b है 10 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल है डेल्टा है अपने पास 15√3। ही इज आस्किंग अस टू फाइंड, अच्छा एंगल ACB इज obtuse, ओके, माने इट हैज टू बी ग्रेटर देन 90। ही इज आस्किंग अस टू फाइंड r², ओके। टू साइड्स डेल्टा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? व्हिच फॉर्मूला ऑफ डेल्टा डू यू थिंक विल हैव टू अप्लाई? डेल्टा इज इक्वल टू टू साइड्स वाला फॉर्मूला है अपने पास व्हिच इज हाफ AB sin C, है ना। तो डेल्टा इज 15√3 इज हाफ 6 into 10 into sin C, तो 30√3 upon 6 into 10 is sin C, ठीक है। 6 5s are 5 2s, तो sin C की वैल्यू है √3/2। तो एंगल C could have been 30 डिग्री, 60 डिग्री और 120, है ना। साइन पॉजिटिव इन बोथ क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन he did say angle ACB is obtuse, इसका मतलब 60 रिजेक्ट हो जाएगा, 120 will be our angle C, है ना। ओके, what next? अब देखो ना, r² फाइंड करना है। डेल्टा है अपने पास, डेल्टा है और दो साइड्स भी है, और अब देखो ना r फाइंड करना है। तो r का बेसिक फॉर्मूला है r इज डेल्टा अपॉन s, वी जस्ट नीड टू फाइंड s हियर। s के लिए आपको तीनों साइड्स की जरूरत है, थर्ड साइड मिसिंग है, बट अपने पास इंक्लूडेड एंगल है। क्लियरली टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल वी हैव, वी कैन फाइंड थर्ड साइड बाय कोसाइन रूल। c square is a square plus b square minus 2ab cos c, a square plus b square minus 2ab cos 120 is minus 1/2, 136 plus 60 196, ये c square है। 196 किसका स्क्वायर है? 14 का, राइट। तो therefore c is 14, so therefore s is a plus b plus c by 2, 6 plus 10 plus 14 by 2, 16 plus 14, 30 by 2 which is 50। therefore r is delta upon s, डेल्टा कितना है? 15√3 upon 15, 15 कटेगा √3 आएगा, लेकिन मैंने पूछा r² which is आंसर, sorry which is 3, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, टिपिकल यू सी इंटीजर टाइप क्वेश्चन, दिस इज अ टिपिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन, राइट। सो 126 आप लोग कर सकते हो, डायरेक्ट अपना नॉर्मल मेथोडोलॉजी है। 122 we'll see, we'll directly switch over to 121, right। A polygon of 9 sides, each of length 2 units, is inscribed in a circle, inscribed inside a circle. Then the radius of the circle is, since the polygon is inscribed in the circle, तो polygon अंदर है, सर्कल ऊपर से ड्रॉ किया गया है, तो वो बाहर का सर्कल है, तो वो सर्कम सर्कल होता है, isn't it? It is circum circle, right? So clearly 121 में he is asking us capital R, तो कैपिटल R का क्या फॉर्मूला है अपने पास? a/2 कोसेकेंट पाई बाय n, isn't it? यहाँ साइड दे रखा है 2 यूनिट्स और पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स, so n is 9, let's substitute, therefore capital R is
2/2 cosecant pi/9 cosecant 20 डिग्री, दैट्स वही आपका आंसर होगा। ठीक है। अच्छा 119 में क्या है कि आपके पास A:B:C है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से। We have been given ratio of sides. He is asking us to find ratio of capital R and small r. ये शायद से मैंने होमवर्क के लिए दिया था। तो कैपिटल R निकालेंगे कैसे, ABC/4 डेल्टा, और स्मॉल r निकालेंगे कैसे, डेल्टा/s। इसको अगर आपने सिंपलीफाई किया, दिस इज व्हाट वी गेट, ABCS/4 into डेल्टा स्क्वायर। ठीक है। तो सिंस यू सी ये साइड रेशियो में है, तो सिंस ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली A=4, B=5, C=6 ले सकते हो। या आपने नोटिस किया इनका सम जो है 15 आ रहा है, राइट। तो S जो है वो 4 + 5 + 6/2 gives you fraction, right? So what we could do is we could apply shortcut trick here. Since ABCs के मल्टीपल्स है, तो हम मल्टीपल कॉमन मल्टीपल लेते 2 ताकि S इंटीजर हो जाए, राइट। तो A होगा, लेट्स कंसीडर A as 8, B as 10 and C as 12 ताकि S इंटीजर हो जाए। तो अपना कैलकुलेशन पार्ट विल बी इजियर। सो हाउ मच वुड दिस बी, 8 + 10 + 12, 13/2 which is 15। ठीक है। आगे का आप कर सकते हो, ABC तो है अपने पास, S भी है, बस आपको ना डेल्टा निकालना है अपना नॉर्मल फॉर्मूला से, √S अपना हेरोन्स फॉर्मूला से, है ना। आंसर आ ही जाएगा, नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल। ठीक है। अच्छा 114 तो अभी किया हमने, अब आते हैं 112 और 113 पे। Let's look at question number 112. क्या है अपने पास कि in a triangle sum of two sides is x and the product of same two sides is y, and it is given to us कि x² - c² is y, where c is the third side. इसका मतलब the other two sides have to be a and b, right? So in a triangle sum of two sides is x, so a plus b is x, उनका प्रोडक्ट is y, तो a into b is y। तो अपने पास ना 3 कंडीशंस हैं, तो अपने को फाइंड करना है रेशियो ऑफ इन रेडियस टू सर्कम रेडियस। वी नीड टू फाइंड r अपॉन कैपिटल R, राइट। तो r होता है डेल्टा अपॉन s, राइट, r इज डेल्टा अपॉन s, और कैपिटल R होता है ABC/4 डेल्टा। ठीक है। शायद से ये फॉर्मूला लगेगा आई गेस। ओके, तो ये हो जाएगा 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन ABCS, है ना। अच्छा ओके, सो न्यूमरेटर तो मैच हो रहा है अपना, न्यूमरेटर मैच हो रहा है। देखो A into B तो है y/c, और S जो है S इज a + b + c/2, तो x + c/2। S is x + c/2, तो 8 डेल्टा स्क्वायर। देखते हैं ये मे बी ये वाला फॉर्मूला मे बी शायद से कोई दूसरा फॉर्मूला लगेगा, आई डोंट नो। सो लेट्स कीप दिस इन माइंड कि r अपॉन r फाइंड कर लिया, ठीक है। वी नीड टू फाइंड r अपॉन r। सो यू नो विल डू वन थिंग, विल ट्राई टू यूज दिस रिलेशन फर्स्ट, देखते हैं कुछ आएगा कि क्या है, लेट्स सी, है ना। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x की जगह तो ये a + b का होल स्क्वायर - c² is ab। So let's expand this. This gives us कि
a square plus 2ab plus b square minus c square is ab। अच्छा आपने नोटिस किया कि ये a square plus b square minus c square ये कोसाइन रूल में होता है ना, which is precisely a square plus b square minus c square upon 2ab चाहिए अपने को। तो ab को नीचे की तरफ शिफ्ट किया तो माइनस साइन डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2, ये एक्चुअली होता है cos c। नाउ ये एक जबरदस्त मॉडिफिकेशन है ना, वी विल बी यूजिंग दिस इन अदर क्वेश्चंस एज वेल, राइट। ये तीनों का स्क्वायर से दोनों एडिशन में एक सब्ट्रैक्शन में है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। तो cos c 1/2 तो एंगल c 120, वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस, है ना, एंगल c 120 है। अच्छा दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल तो हम डेल्टा फाइंड कर सकते हैं, हाँ, हाफ AB sin c, हाफ AB is by sin 120 √3/2, तो डेल्टा is by √3। और r क्या होता है, r is delta upon s, delta is by √3 upon s, s क्या है, a plus b, we'll find this, s is a plus b plus c upon 2, x plus c upon 2, तो 2y √3 upon x plus c, ये स्मॉल है। What about capital R? a b c upon 4 delta, a into b है y into c upon 4 delta is y √3, y कटेगा c upon 4 √3, ये कैपिटल R, इनका रेशियो निकालना है अपने को। Therefore r upon r is 2y √3 upon x plus c whole divided by c upon 4 √3।